Good evening, friends. Captain Vijay here, your host for tonight's my most awaited session. This is the first time of celebrity Master Marina. Okay, somebody who has followed his passion is coming live. He's agreed to come live today, and after listening to his story, I really was touched, and I decided that his story needs to be shared with everyone. So here I am. Let me get my special guest. All right, it is going to be fun. This session is more or less going to be in English. All right, so let me just send him a request, please. So make this special, guys. Get more viewers, inform your friends, family, because this is going to be one of the special sessions, my favorite session, and coming live in 5, 4, 3, 2, 1. Let's hear it. Let's see. Special guest. Able to see. Yeah, and he's here. Hi, Clement. Hello, everyone. Hello, Captain Saab. Hi. Hi, Kev. Just a little bit camera downwards. I have not introduced you yet. Okay, I wanted to, you to be on the live, and then, I can tell all my viewers that who is our special guest today. It's good. All right, so meet our singing captain. All right, तारीफ वैसे मैं कुछ भी करो कम है, but I'll just try, my level best. Okay, so viewers, we have Captain Pramod Chaudhary here. He's a master mariner. He's been sailing for almost 16 years. He has taught as a marine faculty. He did dry bulk chartering for almost 5 years, and presently he is a marine pilot for last 11 years. And presently he is posted in Hazira, Gujarat. Other than that, listen. He is also known as the singing captain in Bollywood circle. Okay, singing captain. ओके कभी हमने फ्रेज सुना नहीं होगा हमेशा इट इज ऑलवेज मास्टर मरीना ओके सिंगिंग कैप्टन इज स्पेशल टर्म बॉलीवुड के जाने माने लोगों ने इनको दिया हुआ है एंड इज संग फॉर 4 हिंदी फिल्म्स हिज सॉन्ग्स बेबोते आमू एंड वाकई वाकई टी सीरीज में रिलीज हुआ था 2018 में एंड इट इज बीन अ ब्लॉकबस्टर his latest song is Dur Manzil and it has as of now it's crossed more than 26,000 organic views and has been appreciated by various Bollywood celebs. एक दो मैंने अपने स्टोरी पे भी डाले थे. Okay, Shri Anup Jalota ji and Aisha Julka ji and many others. He is active on YouTube and his voices has been liked by Meet Brothers. I believe Meet Brothers का वो काफी popular music directors है उनके कौन से गाने Baby Doll उनका है I believe Baby Doll उनका है विशाल शेखर शब्बीर अहमद राजश्री प्रोडक्शन वीनस म्यूजिक निखिल विनय सर एंड देन पंकज नीलानी सर बपीदा तुतुल एक्सेट्रा he also runs his own musical band and again being a master mariner captain का नाम तो जाना नहीं है तो he is captain's band and he's performed at various places in and out of India. He's performed at almost all the shipping functions, CMMI, Khasti, Sailors Night. He's done Rafi's Night at various halls in Mumbai. मेरा एक क्वेश्चन था आपका फेवरेट सिंगर कौन है बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका फेवरेट सिंगर का आइडिया मिल रहा है मुझे. He's been invited as a chief guest and for judging various singing competitions and latest being Mission Improvement Foundation. वेरियस बॉलीवुड मैगजीन्स में इनके आर्टिकल्स इनके बारे में छापा गया है फॉर एग्जांपल सेलर टुडे सीएन कोस्ट एंड बॉलीवुड मैगजीन्स कंप्लीट सिनेमा आई एम पा एज वेल जिसके लिए अभी आई एम लाइक बीइंग अ पार्ट ऑफ देम and his major achievements Mobisu 2012 semi finalist. It was an online singing contest by a great Shankar Mahadevan sir. Then Human Rights Council Award 2017, PIFA Award 2018 and Umang Online Global Contest Award 2020. अभी ये हो गया आपके अचीवमेंट सर मेरी तरफ से आप एक मैरीटाइम इंडस्ट्री में एक आइकन है एंड ऑल्सो आपने लाइक मर्चेंट नेवी जो
अभी भी काफी लोगों को पता नहीं है इसके बारे में, सो कॉल्ड एज फ्रंटलाइन वॉरियर्स, जो अभी तक रेपुटेशन मिला नहीं हमें। आप बॉलीवुड में व्हेन पीपल आए, आप मैंने आपके वीडियोस देखे, उसमें बॉलीवुड में व्हेन दे से कि कैप्टन प्रमोद, तो सुन के प्राउड फीलिंग आती कि पीपल आर टॉकिंग अबाउट अ मास्टर मरीना। तो सर, वेलकम टू दिस शो। Thank I you. really thank you. So let me just get my co-host Ashish Thakur. Vijay, you can hear me, correct? I can hear you perfectly, sir. Okay. I'm just adjusting the volume of this AirPod. What is the volume? यहाँ पे है, ये नहीं है ना, maximum है। ये इधर से आवाज आ रही है। Yeah, guys, Okay. आशीष ठाकुर को भी मैं इनवाइट कर रहा हूँ। उसमें हाँ, उसमें से आवाज आपने वो चेंज किया था, वो आया था कि कनेक्ट टू ऑडियो, तो नहीं आपने नहीं नहीं, एक मिनट ना, I'm just connecting the audio. श्योर श्योर, नो प्रॉब्लम। वैसे अभी काफी क्लियर है आपकी आवाज। अच्छा। Okay, guys, थोड़ा सा पेशेंस। We have lots of questions to ask him. His journey has been really special and very inspiring. And all the young guys, all the junior, in fact, all the seafarers, ये must watch है। Okay, so thank you everyone. Devashish says best singer Captain Saab. Yes, he's the best singer, obviously. काफी सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी इनके लिए प्रिपेयर करके रखे हुए हैं। आपको भी ऑल व्यूअर्स, दिस इज अगेन इट विल बी इन अ मिक्स, इंग्लिश you can say. So if you have any questions, I will try my best to pick up relevant questions, and definitely sir has agreed, to do more sessions with us. So, we can answer all those questions at next sessions. Maybe we'll get him back on board. So, sir, welcome back. Let me Thank you. get Ashish again. He's okay. Maybe he's busy. Captain Adube says, proud moment of all seafarers. Yes, it is a proud moment. एंड ऑल द यंगस्टर्स, डेफिनेटली आज का ये सेशन, मेरे जितने आरओआर सेशंस और जितने भी किए थे वो सब तुम आपके नॉलेज बढ़ाएगा, बट ये आपको मोटिवेशन और इंस्पिरेशन देगा। ट्रस्ट मी, आई वुड से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लाइव सेशंस अब तक मैंने जो करा हुआ है। सो सर, इफ यू कैन जस्ट स्टार्ट विथ about yourself, and how the journey has been so far, from starting from a naive deck cadet से लेकर as a singing captain. शॉर्ट में सुनाता हूँ, बातें तो बहुत सारी हैं और वक्त की पाबंदी है। मैं बनना चाहता था हमेशा से सिंगर, लेकिन बाय डिफॉल्ट हमारे टाइम में उतनी सारी एक्सपोजर नहीं था। तो डैडी ने बोला कि बेटा तुम पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाओ और उसके बाद फिर तुमको जैसे जो करना है करना। तो कुछ पता भी नहीं था और कोई जैसे बॉलीवुड या म्यूजिक से कोई रिलेटेड भी नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है। तो पैरों पे खड़े होने वाला सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि मर्चेंट नेवी में एक बार घुसे तो फिर बाद में कोर्सेज, फिर एग्जाम, फिर कोर्सेज, फिर एग्जाम, और सेलिंग भी 6-6 महीने की हुआ करती थी। फिर ऐसा लगने लगा कि ना संगीत का दामन हाथ से छूटता जा रहा है। तो लेकिन मैंने कभी भी संगीत को अपने अंदर से मरने नहीं दिया। मेरे पहले गुरु पटना में हुए उमेश कुमार पांडे जी, और उनसे सीखना शुरू किया। उसके बाद फिर मैं 6-6 महीना जाता था और आता था ना शिप से, तो भी मैं उनके पास जाता था। तो वो मेरे को पूछते थे, यार तुम चाहते क्या हो? तो मैंने कहा कि मैं ना, मेरी आत्मा संगीत में बसती है, शरीर जहाज पे रहता है लेकिन आत्मा यहीं रहती है। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये अच्छी बात है। तो फिर सिलसिला चलता गया। कैप्टन रेवारी हाँ, साहब बहुत प्यार करते थे मेरे को। राजेंद्रा में तो उस समय फ्लोटिंग शिप हुआ करता था डॉकयार्ड रोड पे। तो वहां पर वो ना मेरे को जब भी कुछ फंक्शन होता था या कुछ होता था ना, कोई आता था तो बुलाते, प्रमोद को बुलाओ, उसे गाना गवाना है। तो मैं फेवरेट था, फिर कभी कभी मुझे घर भी ले जाते थे तो कि इसको ना इसे गाना गवाएंगे। और मिसेस रेवारी अभी तो है ही, तो वो भी शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ मी। बाद में बीच में मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बहुत प्यार करते थे वो भी।
और राजेंद्रा पे जो भी फंक्शन होता था तो वैसे भी मेरे बैचमेट अगर कोई जुड़े होंगे तो सुन रहे होंगे। बाद में ना एक ऐसा दौर भी आया कैप्टन विजय की मैं मेट्स करने वो एलबीएस कॉलेज के प्रिंसिपल थे कैप्टन रेवारी। हम्म। तब मैं मेट्स मास्टर करने करने गया था। तो मैंने एक बार उनको जाके पूछा कि सर आप तो बहुत प्यार करते हो, आप मुझे जानते हो शुरू से, तो मैं सोचता हूँ ना सर ये तो 6-6 महीना जहाज पे रहने के बाद ना ये रियाज व्याज हो नहीं पाता, तो मैं छोड़ दूं क्या? तो उन्होंने मेरे को सलाह दी कि नहीं नहीं बेटा ऐसा मत करना, तुम कम से कम कैप्टन बन जाओ, कमांड ले लो, इतनी मेहनत की है यहाँ पर, उसके बाद तुमको फिर देख लेना। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मेट्स दिया, हमारे टाइम में मेट्स मास्टर अलग होता था, मेट्स दिया, फिर मास्टर्स दिया, फिर कमांड ली, फिर लेकिन जब भी जहाज पे भी मैं रहता था तो विंग्स में जाके ना सुहानी हम्म। चांदनी रातें जब दिखती थी और एकदम शांत समंदर, तो मैं अक्सर गाया करता था, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। फिर लोग सोचते थे कि पता नहीं ये विंग्स में जाके भी गा रहा है, फिर शिप पे भी पार्टीज होती थी। एनीवे, ऑल सेड एंड डन, कमांड लिया, मास्टर बना। उसके बाद भी जैसे कहा मैंने, आत्मा तो इधर ही थी। तो फिर मैंने देखा पटना में, मैंने बहुत शोज भी किए पटना में, कालिदास रंगालय, और अगर कोई पटना से होंगे तो जानते होंगे। उसके बाद मैंने ना देखा कि मुझे शायद मंजिल बॉम्बे में ही मिलेगी, बॉलीवुड तो यहीं बसता है। तो मैं बॉलीवुड शिफ्ट हो गया। पेरेंट्स बहुत नाराज हुए लेकिन फिर भी मैं शिफ्ट हो गया। यहाँ शिफ्ट हुआ, शादी हुई। मेरी वाइफ, उनका नाम निर्मा है, निर्मा वॉशिंग पाउडर वाली निर्मा। तो वो छोटी सी बच्ची ना बड़ी हो गई है अभी। उन्होंने बहुत नहीं, सपोर्ट सच किया। में, सच में। हाँ, नहीं नहीं नहीं, सच में नहीं, ऐसी मजाक कर रहा हूँ। बट हर नेम इज देखो। निर्मा, NIRMA, ओके। है ना? हम्म। तो यहाँ आए, उसके बाद ना ठान रखा था कि मैंने एक दिन उनको एक सीरियल देख रहा था मैं, वॉइस ऑफ इंडिया। तो मैंने बोला कि निर्मा मुझे ना वहां रहना चाहिए था यार, मैं ना गलती से या पता नहीं अपनी आत्मा मार के, जमीर मार के ना जहाज पे जाके काम करता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम करना चाहते हो तो करो। लेकिन बहुत बड़ा डिसीजन था। मैं ऑलरेडी मास्टर था और उस समय मुझे याद है $4,000 मुझे मिलते थे बल्क एरिया पे, केप साइज की बात कर रहा हूँ। एंग्लो ईस्टर्न में मैंने सेल किया करीब 15 साल। और 1 साल बाद सीधे ना वेजेस में जंप हुआ था, $8,000-9,000 बल्क एरिया पे मिलते थे। लेकिन हमारा डिसीजन ये था कि नाउ और नेवर वाली बात थी। तो मैंने पूछा कि क्या करोगी बताओ। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं नमक रोटी खा लूंगी, लेकिन तुम जो सपना लेके बैठे हो कि तुमको सिंगिंग में कुछ करना है, और तुम कहते हो तुम्हारी रूह वहीं पर है, तो हम वैसे ही करते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो बहुत सारे लोग, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग मुझे पागल अभी भी बोलते हैं और तब भी बोलते थे, मुझे इतना पैसा छोड़ के कौन ये गाना वाना गाने जा रहा है, और पता नहीं इसको क्या मिलेगा और क्या मिल रहा है ना? तो सिलसिला वैसे शुरू हुआ। यहाँ भी बहुत सारे में आके, और अभी फिलहाल मेरे एक गुरु हैं अनवर खान साहब, किराना घराना के, जिस घराना से अरिजीत सिंह बिलोंग करता, तो उनके साथ अभी रियाज करता हूँ 3-3, 4-4 घंटा। फिर बाद में मैंने यहाँ के एंग्लो ईस्टर्न में पढ़ाना शुरू किया, ट्रेनिंग सेंटर अंधेरी में। उसके बाद भी मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ और करना चाहिए, तो मैं JM बख्शी में चार्टरिंग करने लगा। फिर शॉर्ट ओके। में बता रहे हैं, ट्राइबल चार्टरिंग करता था। अब ट्राइबल चार्टरिंग में तो फिर कहानी उल्टी हो गई, 24 घंटे काम। मतलब अभी यूएस मार्केट खुला है, फिर शाम को यूरोपियन मार्केट खुला है, सुबह जगने से पहले ऑस्ट्रेलिया और जापान खुल जाते थे, और रात को सोने के टाइम में यूएस मार्केट खुल जाता था। संडे को छुट्टी सोचो तो गल्फ खुला हुआ है, और वो फ्राइडे को बंद है, बाकी संडे को भी खुले हुए हैं। तो इतना सारा देखा कि फिर समय नहीं मिला, तो मैंने फिर चार्टरिंग भी छोड़ दी। फिर मैंने बहुत सोचा कि मैं क्या करूं, क्योंकि जिस चीज के लिए मैं जमीन पे आया था, मतलब शोर जॉब के लिए, तो वो पूरी नहीं हो रही थी। तो हमने बहुत सोचा, फिर हमने डिसाइड किया कि पायलट ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि सेलिंग में तो फिर भी वही 4 महीना 6 महीना लगेगा, रियाज छूट जाता था, बॉलीवुड में नेटवर्किंग छूट जाती थी, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली बात थी। तो हमने फिर बहुत सोचा समझा, एक सीनियर से बात की, और फिर मैंने कहा कि ठीक है पायलट ज्वाइन करते हैं, कम से कम उसमें ऑन ऑफ है तो मेरे को वो ऑफ टाइम तो मिलेगा कम से कम ना, अगर कुछ नहीं मिला तो। ये सिलसिला जारी रहा।
फिर चार्टरिंग जब छोड़ी तो लोगों ने भी कहा फिर से कि अरे ये तो बहुत पागल आदमी है, बताओ चार्टरिंग का जॉब लोगों को मिलता नहीं है और ये सब कुछ वो करके फिर ये पायलटेज कर रहा है। तो बहुत सारे लोगों के लिए अभी भी पहेली हूँ। लेकिन फिर मैंने पायलटेज ज्वाइन किया। पहले मुंद्रा पोर्ट में ज्वाइन किया। मुंद्रा पोर्ट में 10 साल काम किया अदानी में। और अभी फिर मेरा ट्रांसफर हो गया हजीरा, तो मैं वहां पर हूँ 1 साल से। तो ऑलमोस्ट 11 साल का पायलटेज हो गया है। अब मुझे समय मिलता है 15 दिन जो मुझे मिलते हैं, तो उसमें मैं अपनी नेटवर्किंग करता हूँ, रिकॉर्डिंग्स करता हूँ। रियाज तो मैं जहाँ पायलटेज करता हूँ वहां भी ना 8 से 10 घंटे 12 घंटे कभी कभी काम होता है। आपको पता है पायलटेज बहुत ही ऑड आवर्स होते हैं, नाइट, रात में, दिन में, वो सीढ़ी चढ़ना, आंधी बारिश तूफान मानसून, मतलब कोई बहुत टफ है। लेकिन एक जुनून है, एक दिल में एक वैसा है कि ना, लोग कहते हैं मास्टर मरीनर, मास्टर उसके अलावा कुछ करते नहीं है ना। तो उसके अलावा भले ही कोई कुछ भी कहे, मेटीरियलिस्टिक कोई भी चीज ने मुझे कभी अट्रैक्ट नहीं किया। बस एक आप मुझे 2 दिन खाना नहीं दोगे, मुझे कहीं सोने नहीं दोगे, कहीं मेरे को अच्छा घर नहीं दोगे, गाड़ी नहीं दोगे तो चलेगा। लेकिन अगर मुझे गाना सुनने को या गाने को मिले तो मुझे लगता है फिर मुझे उसके बाद कुछ चाहिए नहीं। तो अभी तक का सफर आपने तो शॉर्ट में बता ही दिया है। अब बॉलीवुड में बहुत सारे लोग सिंगिंग कैप्टन के नाम से जानते हैं। और 4 हिंदी फिल्मों में गाया है, छोटी फिल्में थी, किसी का प्रमोशन होता है किसी का नहीं, सलमान खान टाइप फिल्म नहीं थी। अनुराधा पौडवाल जी के साथ भी एक डुएट गाया है, वो रिलीज नहीं हुआ अभी तक। और मेरे टी सीरीज के गाने आए थे जो कि वो लोग फिल्मों में डालने वाले थे, लेकिन उन्होंने फिर फाइनली अपने चैनल पे डाला, ब्लॉकबस्टर। गूगल में मेरा नाम अगर कोई डालेगा भी, कैप्टन प्रमोद चौधरी या कैप्टन प्रमोद, हैशटैग कैप्टन प्रमोद, तो भी आपको बहुत सारी चीजें मेरे बारे में, मेरे इंटरव्यूज, मेरे फिल्मी इंटरव्यूज, मेरे अनुराधा पौडवाल जी के साथ फोटोज, रिकॉर्डिंग्स, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। और सोशल मीडिया पे सब पे एक्टिव हूँ। सफर जारी है। बहुत सारी चीजें आपने बताई दी हैं। टी सीरीज से गाने रिलीज हुए हैं, 4 फिल्मों में गाया है, बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, सिंगिंग कंपटीशन वगैरह जज करने जाता हूँ। बहुत सारे स्कूल्स मुझे बॉलीवुड में गाइडेंस के लिए बुलाते हैं कि कैसे आप करते हो, क्या करते हो, क्योंकि मेरा कोई गॉडफादर नहीं है। तो उनको ये लगता है कि एक्चुअल रियल पिक्चर क्या है। तो वो सिलसिला जारी है अभी। बहुत सारे अब मेरा बैंड बन गया है, तो मैंने सबसे पहला शो, अगर कैप्टन दुबे सुन रहे होंगे, कैप्टन सीएल दुबे, तो उनको उनका आशीर्वाद मिला, सबसे पहला शो उन्हीं के लिए किया था, उनकी 50th एनिवर्सरी के लिए। इट वाज अ प्योर कमर्शियल शो। और उसके बाद कैप्टन बीपी सिंह करके हैं न्यू बॉम्बे में, उनके लिए मैंने उनके लिए उनके बेटे की वेडिंग में किया था, हमारे कैप्टन्स बैंड ने किया था। हम लोग ओमान जाने वाले थे, कुवैत जाने वाले थे, इन एंड आउट इंडिया, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ वगैरह में भी हमारा शो फिक्स था। लेकिन कोरोना की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है। तो बैंड इज ऑल्सो गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स। और बाकी आप सबका आशीर्वाद है और दुआएं हैं कि मतलब खानी हुई है कि अब कोई बड़ी फिल्म में ब्रेक मिले, और बैंड चल ही रहा है। हम्म। तो हमारे मास्टर मरीनर का और मरीनर्स का झंडा फहराना है कि हम लोग क्या एग्जैक्टली लेके। सर, एग्जैक्टली सर। ओके आशीष, वेलकम ऑन द शो, शॉर्ट नोटिस। ठीक है, हम भी कभी लाइव करा नहीं हमने, तो थैंक यू फॉर कमिंग। मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए थे, बट फील फ्री, अपनी तरफ से कुछ भी पूछना रहेगा तो यार पूछ लेना, ठीक है। जी जी सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ओके वैसे सर, आई सर। एम अ बिग फैन ऑफ सर, एंड आई हैव आल्सो सीन हिज वीडियो, और मैंने अपने YouTube चैनल में भी शेयर किया था। वेरी नाइस सर। ओह, आई डिडंट नो दैट। थैंक यू आशीष। हाँ आशीष इज अ बिग टाइम, आई मीन अपने आप को छोटा मानता है जो है, वो जो हाँ अभी जूनियर रैंक में है, बट बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है। और एक्चुअली इज अ वेरी नाइस, गुड जेंटलमैन। मैंने आज उसके चैटिंग में पता चल जाता है, वेरी नाइस जेंटलमैन, डाउन टू अर्थ। सो मुझे लगा कि चलो, आई थिंक ये परफेक्ट लाइव शो उसको ऑन बोर्ड ऑन बोर्ड लेने के लिए। हाँ, आशीष, कैप्टन विजय तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे। नहीं सर, कोई बात नहीं है, बस आप लोगों से सीखते रहते हैं, और कुछ नहीं सर। नहीं नहीं, बड़प्पन है, अच्छी बात है। और सर आई वुड स्पेशल कमल मर्चेंट भी, वो भी अपना जूनियर बंदा है और वो भी अपना पैशन परस्यू कर रहा है। उसने भी हाँ मुझे हाँ। आपके बारे में बताया था पहले, तो प्लान था, जी। बट आई एम वेरी हैप्पी वी कनेक्टेड समहाउ। सर नहीं एक नहीं। पूछना है, आपको हाँ, सिंगर बनना था या मास्टर मरीनर बनना था? मेरे को सिंगर बनना था। सिंगर बनना था। जी। तो आपको ये जानना है कि आपने फिर ऑब्वियसली आपने पूरा बता दिया, पूरा स्ट्रगल, हाँ
जी। बॉलीवुड का मुझे स्ट्रगल जरा बताएंगे, क्योंकि बॉलीवुड में आपको पता है कि विदाउट एनी हाँ सो कॉल्ड एज नेपोटिज्म हाँ हाँ में चांस मिलता नहीं, और आउटसाइडर्स को मिलता नहीं। तो आप अपनी जर्नी बताएंगे बॉलीवुड में आपने कितना स्ट्रगल किया? हाँ, जर्नी बताता हूँ। जो लोग सुन रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा। जितना ग्लैमर और रोजी पिक्चर दिखता है वैसा होता नहीं है। और मैं नेपोटिज्म तो एग्जैक्टली नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए, जैसे अगर लोग आप लोगों ने मैरी कॉम देखी होगी, क्योंकि अभी मुझे देखी है आपने मैरी कॉम फिल्म, यस सर, मैरी बिल्कुल। कॉम। है प्रियंका हाँ। चोपड़ा वाली ना? अ, उसमें एक जगह वो एक फाइट करती है जहां पर कि ना नेक टू नेक एक कंटेस्टेंट के साथ रहती है वो। तो उसमें थोड़ी चीटिंग हो जाती है और वो डिस्क्वालीफाई हो जाती है। तो उसको बहुत दुख होता है। आशीष याद आ रहा है? यस सर, यस सर। हाँ। तो उसके बाद ना वो उसको उसका हस्बैंड बोलता है कि तुम अपना लेवल इतना रेज करो कि तुम्हें हम्म। ना कोई तुम्हारे आसपास चीटिंग भी ना कर पाए। तो मैं इस बात पे हम्म। विश्वास रखता हूँ कि आप अपना टैलेंट जो भी है, चाहे सिंगिंग है, एक्टिंग है, ड्राइंग है, कुछ भी है, वो उस लेवल तक ले जाइए कि ना आपको फिर कोई घर से उठा के ले जाए। यही सच्चाई है। और मेरा ऑलमोस्ट 12-13 साल का स्ट्रगल हो चुका है बॉलीवुड में। छोटे छोटे बहुत सारे काम किए हैं। मैं एक बड़े ब्रेक का देख रहा हूँ, लेकिन यही सच्चाई है। देखिए, बॉलीवुड एक प्योर बिजनेस है, राइट? आप एक एक चीज बेच रहे हो लोगों को, उनको एंटरटेनमेंट बेच रहे हो, जिन्हें सपनों का सौदागर कहते हैं, राइट? आप एंटरटेनमेंट जब देते हो तो उसमें अगर जिन लोगों को आप ले रहे हो, चाहे वो एक्टर हो या सिंगर हो या म्यूजिक डायरेक्टर हो, अगर उसका टैलेंट नायाब है और वो आपके दिल को छूता है, बात बन गई। उसके लिए भी और आपके लिए भी विन विन सिचुएशन है। जिस दिन कोई भी आदमी उस लेवल पे पहुंच जाता है, वो उसको घर से उठा के ले जाते हैं। और वो उसको मतलब फिर ना हम नेपोटिज्म या जो भी है, देखिए थोड़ी सहूलियत तो सबको होती है अगर आपका कोई है तो। लेकिन जिंदगी में मैं जब शिप पे भी था, मैं कमांड में था, तो मैं लोगों को यही बोलता था कि एक्सक्यूजेस देना बंद कर देना चाहिए। लोग एक्सक्यूज ना लेम लोग देते हैं, जो लोग नहीं कुछ कर सकते हैं वो देते हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है। हम जैसे मैंने मैरीकॉम का एग्जांपल दिया है, हम अपने आप का लेवल उतना क्यों ना रेज कर लें कि हमको कोई छू भी नहीं, आसपास भी अगर कोई चीटिंग भी करना चाहे तो नहीं कर सके, है ना? और वही सच्चाई है। जो रियल टैलेंट है उसको मिलता ही है काम, और वो ऊपर बढ़ता ही है। और कोई भी चीज करने के लिए मेरे ख्याल से आज जो भी जिस ऊंचाई पे है, चाहे वो अरिजीत सिंह हो, अनूप जलोटा जी हो, या अमिताभ बच्चन हो, या कोई भी हो, उसके पीछे एक कहानी है और बहुत बड़ा त्याग है। कोई भी अचानक नहीं होता और कोई भी अचानक नहीं हो जाता। तो मैंने जो देखा है वो मैंने आपको बयान किया। और स्ट्रगल में तो कैप्टन साहब ऐसा होता था मेरे साथ कि मैं बता ही देता हूँ ऑन रिकॉर्ड कि बता दीजिए सर। मैंने जब सोचा था कि मैं सेलिंग क्विट कर रहा हूँ, तो मैंने आपको बताया कि अगले साल से डबल होगी मास्टर की सैलरी, लेकिन हम गए नहीं। मेरे पास एक हाउसिंग लोन था, एक कार का लोन था। मेरी ईएमआई 35,000 रुपए जाती थी और मुझे नौकरी मिली थी 40,000 रुपए की। तो मतलब मेरे पास घर में सिर्फ 5,000 रुपए बचते थे, और जिसमें मुझे घर चलाना होता था, लेकिन बैंक में जो थोड़ा बहुत जमा था वो लेके मैं काम करता था। और मैं ट्रेनों में सफर करना शुरू किया। ट्रेनों में ये आलम था कि एक बार बोरीवली स्टेशन पे लोगों ने, पूरी भीड़ ने मुझे ऐसा धक्का दिया कि मैं चारों खाने चित ऐसे गिरा। 2-3 लोग मेरे ऊपर से चले गए और शोल्डर्स पे, हाथों पे ब्लड क्लॉट हो गया। मेरी शर्ट फटी और क्या क्या नहीं हुआ। सिर्फ ये सब इसलिए था कि मेरे को म्यूजिक परस्यू करना था। तो मैं वापस नहीं जाना चाहता था, क्योंकि मैं जानता था कि अगर एक बार मैं चला गया तो फिर मैं वापस नहीं आऊंगा। मैंने मेरे बहुत सारे सीनियर कैप्टन्स को, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैंने देखा वो मेरे को हर बार मिलते थे, बोलते प्रमोद ये मेरा लास्ट कॉन्ट्रैक्ट है। वो लास्ट कॉन्ट्रैक्ट कभी होता नहीं था। कभी नहीं तो होता, हाँ। मैं उस बात से बहुत अवेयर था कि लास्ट कभी होगा नहीं। एक लक्ष्मण रेखा आज ही खींचनी पड़ेगी कि अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर। तो वो किया। तो बहुत धक्के खाए, स्टेशन पे गिरा, ब्लड क्लॉट हुआ, कपड़े फाड़े गए, लोगों ने घुसने नहीं दिया। महेश भट्ट के ऑफिस के बाहर, कई लोग के ऑफिस के बाहर खड़ा रहता था। वो जो ईगो था ना मास्टर मरीनर वाला, वो घर में रख के जाता था मैं, है ना? हम्म। और वो अहम तो था ही नहीं। और दूसरी बात जो इंडस्ट्री में मैंने देखा है कि मतलब सॉरी टू से बट बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो आपके इतने क्वालिफाइड नहीं है।
ओके। तो आपको कभी ना कभी ना वो एक फीलिंग भी आती है कि मैं किसके आगे गिड़ रहा हूँ, किसके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। देखिए इंडस्ट्री में तो मैं फिर से कैडेट बन गया ना, मैं वहां मास्टर नहीं हूँ, मैं हम्म, कैप्टन नहीं हूँ, मेरी बात कोई सुनेगा नहीं। तो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को ये हजम करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैं कैप्टन हूँ और शिप पे आपको सब रिस्पेक्ट कर रहे हैं, सब गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, जो भी है, आपकी एक अलग इमेज है। लेकिन आप जब अचानक यहाँ आते हो बॉलीवुड में, तो एक शायद आपके इतना क्वालिफाइड ना भी बंदा हो, और भले ही आपकी इतनी समझ ना हो, और जो भी हो आप समझ लो, मैं उसको एग्जैक्ट शब्दों में बयान नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन उससे भी आपको सुनना पड़ता है। वो आपको बोलेगा, अरे क्या बात कर रहे हो यार, कैसी आवाज है तुम्हारी, क्या करते हो तुम, रोज क्यों आते हो तुम, अरे मैंने बोला ना नहीं आना चाहिए, मैं फोन करके आओ। तो ऐसा सब सुनने को बहुत मिलता है। तो मुझे कई दोस्त मेरे, मतलब मैंने देखा है कि वो लोग मेरे आसपास ही वो भी जाते थे कभी कभी, मरीनर्स की बात कर रहा हूँ। वो लोग बोलते थे हम लोग हाथ जोड़ते हैं, ये सब काम आप ही कर सकते हो, हमारे बस की बात है नहीं, क्योंकि इतनी जिल्लत, मास्टर मरीनर होने के बाद इतनी जिल्लत कौन सहेगा। और कभी कभी तो मेरे जो गुरु हैं वो मेरे को बोलते हैं कि कैप्टन साहब, ये इन सबको तो आप खरीद सकते हो, मतलब खरीद सकते हो इन द सेंस कि आप हायर करके इनका तो शो देख सकते हो, और उन्हीं के करेक्ट आगे है। हाथ जोड़ते हो, और वो सुनता नहीं है और वो इतनी सारी बातें सुनाता है आपको। तो इट इज दैट टफ। और बहुत सारी जगह, जैसे नीत ब्रदर्स के पास गया, उनको ऑडिशन दिया, विशाल शेखर के पास गया, ऑडिशन दिया। एक बात आप लोगों ने भी शायद सुनी होगी, अब बाकी जो लोग सुन रहे हैं वो उनको भी मैं बताता हूँ कि यहाँ ना कोई बोलता नहीं और काम कोई देता नहीं। ये बॉलीवुड का बड़ा रियलिटी है। स्टैंडर्ड सा फेज है। सबने आज तक यही बोला है, जैसे आपने जिनके नाम लिए उन सब ने ये बोला है कि नहीं नहीं, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, एकदम अलग है, फ्रेश वॉइस है, लेकिन ना फिर वो काम मिलता नहीं है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मैं दूसरी साइड में जाना नहीं चाहता। लेकिन हाँ, ये मैं कहना चाहता हूँ कि रोजी पिक्चर ऐसा कुछ है नहीं, जितना ग्लैमर आपको बाहर से दिखता है वैसा है, होता नहीं है। बहुत सारा स्ट्रगल है, बहुत कड़ी मेहनत है, और हर उस आदमी को जो एक जगह पहुंचा है, जिसने जो भी अचीव किया है, वो बहुत सारा सैक्रिफाइस, बहुत तपस्या और बहुत मेहनत के बाद पहुंचा है वो। यस सर। सर अभी आपने तो बताया कि काफी रिजेक्शंस हुए। हमें भी हाँ। रिजेक्शंस मिलते हैं, नए नए कैडेट्स है कंपनीज में जाते हैं और उनको उनको रिजेक्शंस मिलता है 99% आजकल। तो वो स्ट्रेंथ कहाँ से आप लेके आए? रिजेक्शन मिला लेकिन नहीं, मैं फिर भी कोशिश करूंगा, मैं दूसरे वापस जाऊंगा, फिर से मैं कोशिश करूंगा। वो स्ट्रेंथ कहाँ से आती है सर? देखिए कैप्टन साहब, मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरा एक अगर व्हाट्सएप नंबर भी अगर लोगों के पास होगा, तो मेरा एक स्टेटस है, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। हार आप मानोगे तो हारोगे, और कोशिश करना छोड़ दोगे तो हार जाओगे। ये बात सही है। तो हम जिस दिन ये कोशिश करना छोड़ देते हैं कि आगे होगा कि नहीं होगा, उस दिन हम हार गए। लेकिन जब तक मैं लगा हुआ हूं, तब तक मुझे ये कोई टैग नहीं दे सकता कि मैं हार गया। राइट। तो अगर कोई चीज पानी है ना, तो आई थिंक बहुत सारी किताबें भी मैंने पढ़ी हैं कि एक थ्रेशोल्ड लिमिट होता है। ओके। आप उस हद तक मेहनत कर लेते हो ना, तो उसके बाद आपको कोई रोक नहीं सकता। आप बहुत सारी किताबों में भी पढ़ोगे, शिव खेरा की किताब है, बहुत सारे मोटिवेशनल ऐसे रीडर्स हैं, उनकी भी पढ़ोगे। तो ऐसा नहीं होता कि अगर आप एक लिमिट तक मेहनत कर लो और आपको फेलियर मिले। तो मुझे दो चीजों पे बहुत विश्वास है। मेरे डैडी एयरफोर्स में थे, अभी रिटायर हो गए। वो भी ये कहते थे कि देखो, एक तो तुम्हारी हिम्मत, और एक तुम्हारी मेहनत, उसके आगे कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि नहीं हासिल हो सकती। तो मैं वो विश्वास लेके चलता हूँ। और जैसे कैप्टन साहब सब जानते हैं कि सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आप आपको अपने ऊपर विश्वास है कि मैं कर लूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको नहीं रोक सकती। और शायद मैं फिल्मों की बात ही कर रहा हूँ, क्योंकि मैं फिल्मों में बहुत मैंने वो किया है, स्ट्रगल किया है। तो शाहरुख खान ने भी शायद एक किसी फिल्म में कहा है ना कि अगर आप एक शिद्दत से मेहनत करते हो ना, तो सारी हम्म। कायनात। और ये बात सही है, देयर इज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो कि आप जैसा सोचते हो, पॉजिटिव सोचते हो, हिम्मत करते हो, तो आपको वो सारी चीजें एक समय के बाद मिलनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए ओके। मैं कभी हार मानता नहीं। यस सर।
काफी लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपको एक गाना सुनाने के लिए, वो आएंगे, विल कम टू दैट। आशीष कुछ पूछना है? नहीं सर, एक्चुअली मैं तो सर का गाना, वो मंजिल गाना सुना था, एंड आई थिंक हम्म, आई हैव मैंने 3 बार सुना, एंड इट वाज वेरी नाइस। क्योंकि मेरे को याद है, मैं टीएमई के टाइम जब मैं जूनियर था तो मैंने भी एक रैप लिखा था, एंड इट वाज इन बिल्जेस बिल्जेस ट्रांसफर करते हुए सर। एंड मैंने उसको फिर लिख कर रखा था, बट फिर मैंने कभी कंपोज नहीं किया, मैंने बस वीडियो शूट कर ली उसके हिसाब से कि मैं बनाऊंगा अपने आप बाद में। तो फिर मौका ऐसा मिल गया और मुझे ऐसे दोस्त मिल गए, तो उन्होंने मेरे को हेल्प करके मैंने फिर एक वो बना दिया कंपाइल करके। तो फिर वो गाना, उसके बाद भी मैंने आपका गाना सुना, मैं बोला क्या बात है, अलग ही लेवल है। तो आपका मैंने गाना यूट्यूब पे फिर शेयर भी किया था, एंड इट अच्छा वाज अच्छा। वेरी नाइस। अच्छा रिस्पॉन्स है उसका, अभी तो शायद काफी व्यूज भी बढ़ गए ना सर। हाँ 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 एंड हाँ। सर, अभी मैं आपको इन डिटेल नहीं जानता हूँ, बट अभी धीरे धीरे जान रहा हूँ, ऐसे जैसे आप बात बोल रहे हो। सो हम लोग को भी मोटिवेशन मिल रहा है कि हम लोग जो रोते रहते हैं सब लोग, घर पे नहीं तो जहाज पे, तो हाँ हाँ। वो सब खत्म करें और आगे बढ़ते जाएं। एंड सर, थोड़ा वो सा मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा दैट मैं एक्चुअली कुछ नहीं है, मैं तो मैरिन इंजीनियर हूँ, बट मेरा साइड हॉबी है, बिकॉज हम्म, काफ़ी टाइम मिल जाता है जहाज पे, इन स्पाइट ऑफ सीइंग अ मूवी, और ऐसे ही टाइम पास करने के अलावा आई डू व्लॉग, मतलब मैं कंटेंट बनाता हूँ फॉर द जूनियर्स या फिर ऐसे ही। तो एक मैं भी अपना एक पैशन और एक जो भी हॉबी है वो फॉलो कर रहा हूँ, इवन ऑन लैंड और जहाज पे। तो अच्छा लगता है आप लोगों से कनेक्ट करके, आप लोगों से सीख करके। बस सर यही है मेरा तो। एंड सर टू बी ऑनेस्ट मैं इनसे सीख रहा हूँ, आशीष ठाकुर और काफी इसके जैसे यंगस्टर्स बंदे, इनसे सीख रहा हूँ इंस्टाग्राम पे कैसे आना है, इंस्टाग्राम पे लाइव और कंटेंट बनाना है, इनसे सीख रहा हूँ। नॉलेज है बट उसको कैसे प्रेजेंट करना अभी इनसे अभी हाँ हम सीख रहे हैं। हाँ। नहीं नहीं, वो तो तब सही बात है। जी, जिंदगी में तब आशीष, ये मेरा मानना है, सीखना कभी बंद नहीं होता। मुझे कहीं से कुछ मिल जाता है तो मैं सीख लेता हूँ। कई लोग मुझे बोलते हैं कि आप इतने सीनियर हो फिर भी, मैंने कहा यार सीखने में क्या है, और कोई भी आदमी परफेक्ट तो होता नहीं है ना। यस तो और सीखना इज ऑलवेज बेटर rather than being a novice and you don't know certain things ना। so it's always good। और कैप्टन विजय भी बहुत हम्बली सब कुछ बता रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो नहीं सर, मेरे को चलिए। पूछना था कि जो मंजिल वाला आइडिया है हाँ सर, क्योंकि ये हाँ। बहुत कनेक्ट करता है स्पेशली फॉर हम्म, शिपिंग सेलर्स लाइफ, हाँ मैंने हाँ देखा हाँ। है। तो ये आइडिया मतलब सर कैसे आया आपको, और ये आपने लिखा है या? नहीं नहीं, ये लिखा है, इनके लिरिसिस्ट हैं योगेश जी। अब ओके, योगेश जी कौन है मैं बताता हूँ। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, ओके, साँझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए, मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए कहीं। ये योगेश जी हैं, उन्होंने ये लिखा है, दूर मंजिल। और इनके जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं निखिल कामत, एक्चुअली वो निखिल विनय की जोड़ी है, जिन्होंने तुम बिन, आपने सुनी होगी ना फिल्म, जिसमें जगजीत सिंह का बहुत फेमस गाना है, कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, है ना। हाँ जी सर। चोर और चांद, हाँ चोर और चांद, राजू बन गया जेंटलमैन, मतलब लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर हैं। तो उनसे मेरी काफी बनती है, स्ट्रगल के दौरान ही उनसे मिला था। तो उन्होंने मेरे को बोला कि कैप्टन साहब ये ना, ये गाना आपकी आवाज में बहुत अच्छा लगेगा। और वो 2 साल से मेरे पीछे पड़े थे कि ये गाओ गाओ गाओ, और मैं इसको टाल रहा था कि अरे ठीक है बाद में देखेंगे बाद में देखेंगे। फिर इस बार लॉकडाउन के टाइम में ना, सब एकदम फ्रस्ट्रेटेड थे, वैसे ही डिप्रेस थे, और ये गाना कहीं ना कहीं मुझे छू रहा था, और वो भी पुश कर रहे थे। तो मैंने कहा कि ठीक है यार, अब हो सकता है नियति में कुछ और लिखा हो, भगवान की कोई मर्जी हो, तो ये मैं गाता ही हूँ। और ये ऐसा गाना बन गया कि आप मानोगे नहीं कि ना, हर आदमी से, मतलब चाहे वो छोटा बच्चा है या बूढ़ा है या बड़ा है या मिडिल एज है, वो कनेक्ट करता है। बिकॉज गाना ही वैसा है, दूर मंजिल है तेरी तू अकेला है माना, कभी हार नहीं जाना ना, वैसा। तो दैट्स वेरी, तो उस तरीके से ये चीज शुरू हुई, और अब वैसे मैंने फिर गाया इसको। ओ जी सर, नेक्स्ट पूछना चाहूंगा कि आपका फेवरेट सिंगर और आपके आइडल कौन है?
मेरा फेवरेट सिंगर किशोरदा है। और लेकिन मेरे से हर सिंगर के गाने गवाए गए हैं। जैसे आप बोल रहे थे ना, रफी नाइट बहुत मैंने अब किया बॉम्बे हाँ, में। मेयर हॉल में किया, प्रबोधन ठाकरे हॉल में किया है बोरीवली में। मेयर हॉल अंधेरी में किया है। बांद्रा में किया है। फिर मैं मुकेश साहब के भी गाने गाता हूँ। और मेरा जो जोनर है वो लिमिटेड नहीं है। मैं रोमांटिक गाता हूँ, सैड गाता हूँ, मोटिवेशनल गाता हूँ और डांस नंबर भी गाता हूँ। अगर आप मेरे टी सीरीज के जो गाने हैं, एक है बेबी ते आमो, वो सॉफ्ट रोमांटिक है। वाकई वाकई डांस नंबर है। दूर मंजिल मोटिवेशनल है। तो मैं सारे जोनर्स गाता हूँ। तो आई एम नोन फॉर दैट कि ना, कोई भी जोनर और कैसा भी। लेकिन हाँ, किशोर दा मेरे बहुत ही फेवरेट सिंगर हैं। आइडल अगर आप बोलोगे तो मैं हर उस आदमी का कायल हूँ जो अपनी मेहनत के दम पे आज जो अचीव कर चुका है। तो मैं सबका कायल हूँ और सबका फैन हूँ। तो मेरा कोई एक इंडिविजुअल आदमी तो नहीं है। लेकिन हाँ, सिंगर आप पूछ रहे हैं तो किशोर दा। हम किशोर दा, मोहम्मद रफी उस टाइम के तो लेजेंड्स है। जी जी हाँ। सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। क्या यार? हाँ एंड सर ये कि जैसे आप शिपिंग लाइन में थे एंड साथ ही साथ हाँ आपने बहुत कुछ करके आपको मालूम पड़ा कि हाँ हाँ। आपका जो रूह है वो म्यूजिक में बसती है। ऐसे जी। बहुत से लोग हैं, इवन मैं अपने आप को वैसा मानता हूँ कि हम हम्म लोग का कुछ ना कुछ पैशन है, बट हम्म कुछ ना कुछ करके हम लोग शिपिंग लाइन में आ गए हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा वी डोंट लव, वी लव हम्म गोइंग ऑन शिप, वी लव वर्किंग ऑन शिप। बट आपको, हम लोगों को जैसे लोग जो हैं उनके लिए क्या एडवाइस है कि हमको कब हद तक वो डिसीजन लेना चाहिए, या फिर इसको एज अ हॉबी या हैप्पीनेस के तौर पे चलते रहना चाहिए। जैसे सिंगिंग हो गया, अभी सपोज सर आप तो, आपका लेवल ही अलग है, आपने एक टाइम पे डिसाइड कर लिया कि आई हैव टू क्विट सेलिंग। बट हम लोग को मालूम नहीं कि हम लोग का वो लेवल है उसमें, वो रूह वाला कनेक्शन हमारे पास नहीं है। तो वैसे लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? इवन सब लोग ऑन द ऑन शिप सर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, हाँ बट हाँ। रुके रहते हैं जो भी है, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे सर? आशीष, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं ये मानता हूँ कि भगवान ने ना सबको एक हर 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 इंसान को ना एक टैलेंट से नवाजा है। मतलब आप देखोगे ना तो हर इंसान में कोई ना कोई एक अलग चीज मिलती है जो बिल्कुल ही उसका ना, जैसे उसका बहुत ही शार्प होता है वो टैलेंट। जैसे ड्राइंग हुआ, सिंगिंग हुआ, एक्टिंग हुआ, या किसी का पढ़ाई में ही होता है ना। तो ऐसा कोई भी, ये मेरी मेरी सोच है कि ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास टैलेंट नहीं है। बस फर्क ये होता है कि कोई परस्यू करता है और कोई परस्यू नहीं करता है। अब परस्यू करने में जुनून होना बहुत जरूरी है। जिसे कहते हैं ना कि एकदम तन मन से लगना और सैक्रिफाइस। कोई भी चीज, जैसे मैंने पहले भी कहा था, वो आसानी से हासिल नहीं होती। और जो आसानी से हासिल हो गई, जो जहां आपने शॉर्टकट लगाया, वो फिर ज्यादा दिन टिकती नहीं है। आप देखिए, जैसे मैं एग्जांपल्स बॉलीवुड के ज्यादा देना नहीं चाहता, लेकिन आप देखो, बड़ा बड़ा एक स्टार है, उसका एक बेटा है, राइट? वो स्टार तो आज भी बिजी है, उसका बेटे के पास काम नहीं है। ठीक है। सलमान खान साहब हैं, वो उनके पास काम है, उनके बाकी भाइयों के भाइयों पास के पास। ऐसा नहीं है, राइट? तो तो जैसे एक सिंगर है, मान लीजिए अनुराधा पौडवाल जी हैं, उनके साथ मैंने गाया था, मैं बहुत इज्जत करता हूँ। अब अगर कोई चाहे तो सिंगर अपनी बेटी को सिंगर बना सकते हैं ना। लेकिन फिर आप देखो, नेहा कक्कड़ आज एक अलग लेवल पे है, उनकी बेटी शायद दूसरे लेवल पे है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस तो यस यस। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी कुछ करना चाहे उसका कोई शॉर्टकट है नहीं। और वो कोई आराम से करने वाली चीज, मतलब ना, ये आदमी को भूल जाना चाहिए। त्याग बहुत है, तपस्या बहुत है, चाहे कोई भी चीज करो आप। चाहे वो सिंगिंग करो, लिखो, लिरिक्स राइटर लिखो, या जो भी। आई थिंक कमल अगर होगा तो कमल हैज बीन वेरी क्लोज टू मी, क्लोजली वर्किंग ऑल्सो। तो वो भी जानता है। तो आई थिंक आप लोगों के लिए मैं ये कह सकता हूँ, ये मेरा अपना लाइफ का एक्सपीरियंस है कि वो जो कॉलिंग है ना, वो आशीष अंदर से आती है। आपको वो महसूस होगा। जैसे मैंने कहा ना, मुझे मेरे बहुत सारे बैचमेट्स मर्सिडीज में घूमते हैं, शिप ओनर्स हैं, शिपिंग कंपनीज के, है ना। वो मतलब चार पांच बड़े बड़े बंगलोज में रहते हैं। अब मेरी वाइफ बोलती है कि यार तुमने क्या किया आज तक, बताओ। तुमने इतनी सेलिंग की, मास्टर मरीनर हो, तुम्हारे पास एक 2 बेडरूम का हॉल है, एक पुरानी सी गाड़ी है, और तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है।
अब ये लाइन आशीष आपको खुद ड्रॉ करनी पड़ेगी कि आपको चाहिए क्या, है ना, क्योंकि वो मैं नहीं डिसाइड कर पाऊंगा। मैंने सोचा था, और मेरी वाइफ ने भी बहुत सपोर्ट किया है इस जर्नी में। तो मैंने ये सोचा था कि मुझे ना इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो मेरी जो रूह को सुकून देता है वो था सिंगिंग, म्यूज़िक। तो मैं उसको परस्यू करूँगा, क्योंकि जो भौतिक जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं या प्लेजर हैं उससे आप ऊब जाओगे एक दिन। लेकिन ना आप जो आपका पैशन है ना उससे कभी नहीं ऊबोगे, और ना उसमें आपको कभी थकान होगी। स्पिरिचुअल साइड में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत सारे स्पिरिचुअल कोर्सेज भी करता हूँ। स्पिरिचुअल साइड अगर आप लोगे ना, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा आशीष, जो सोल है, आत्मा है ना, उसमें वो संस्कार साथ में जाते हैं। अगर रीबर्थ है, मैं उस पर डिबेट नहीं करूंगा, अगर रीबर्थ है तो व्हेन यू गेट अनदर बॉडी, the all the things whichever you have learned in this birth will go along with it. इसीलिए आप देखोगे टीवी में आजकल कि वो 6 साल का बच्चा वो स्टेज पे आके ऐसा गाता है कि आप ये बताओ कि हम लोग यहाँ रियाज की बात कर रहे हैं, सीखने की बात कर रहे हैं, ट्रेंड सिंगर है कि नहीं बात कर रहे हैं। वो 6 साल का बच्चा, उसने कब रियाज किया और कब उसने सीखा, और वो ऐसा गा रहा है कि वो बड़े बड़ों की तो हवा निकाल रहा है। करेक्ट आशीष? यस तो एक चीज जो भी सुन रहे हैं वो भी ध्यान रखिएगा, ये बात मेरे को बहुत देर बाद समझ में आई है कि कुछ भी ना सीखा हुआ व्यर्थ नहीं जाएगा आपका। लेकिन आप जो मेटीरियलिस्टिक चीजों में जाओगे ना, कि कार यहीं रह जाएगी, बंगला इधर ही रह जाएगा, पैसा इधर ही रह जाएगा, बैंक बैलेंस इधर ही रह जाएगा, वो आपके साथ नहीं जाएगा। तो वो स्किल जाता है, वो संस्कार आपकी आत्मा के साथ जाते हैं, दैट इज एब्जॉर्ब्ड इन योर सोल। तो कॉलिंग जो आप बोल रहे हो ना, वो कॉलिंग आपको अंदर से फील होनी चाहिए। क्योंकि आप किसी के कहने पे, आज मैं बोल दूं कि आशीष तुम छोड़ दो सेलिंग और कल से ऐसा करना शुरू करो, तो वो उससे नहीं होगा जब तक आपके अंदर वो निश्चय नहीं है। जैसे मैंने कहा ना, मैंने जब छोड़ा तो मेरे पास 5,000 रुपए बचते थे घर में लोन देने के बाद। अब आप बताओ, मेरी वाइफ को, अब बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे, यहाँ शिपीज बहुत है ठाकुर विलेज में, है ना। मेरी वाइफ को कई लोग पूछते थे, कई लेडीज पूछती थी कि तुम ठीक हो ना निर्मा, तबीयत तबीयत ठीक है ना। तो वो बोलती थी क्यों, क्या हुआ? नहीं नहीं, तुम्हारा घर का भी खर्चा कैसे चलता होगा ना, ये तुम्हारा हस्बैंड तो पागल है, तुम उसको समझाती क्यों नहीं हो? मेरे घर वाले कई बार मेरी वाइफ को बोलते थे कि अरे वो पागल है, तुम उसको समझाओ यार। अभी भी बोलते कई लोग कि एक तो उसने सेलिंग छोड़ दी, फिर चार्टरिंग मिला तो चार्टरिंग छोड़ दी। मतलब इतना बड़ा बेवकूफ तो दुनिया में हो सकता है? तो आप समझ लो आशीष मैं क्या पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यस वो एक सर, अंदर से आपको इससे आएगा। ही एक लिंक करना है मुझे क्वेश्चन, हाँ कि ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है सर। मैं बहुत हाँ बार सोचता हूँ कि जो भी मैं कर हाँ रहा हूँ या जो भी हो रहा है हाँ सर, ये जो ब्लिस होती है ना लाइफ की, जैसे आपको हाँ आपकी ब्लिस मिली, हाँ हाँ वैसे हाँ मेरे को मेरी ब्लिस कब मिलेगी, कब होगा, वो कैसे होगा, वो सब मैं कभी कभी सोचता रहता हूँ, बट कभी आता नहीं है। फिर थोड़ा डिमोटिव हो जाता हूँ, फिर सोचता हूँ कोई बात नहीं, और टाइम देता हूँ। ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो इसके ऊपर से थोड़ा विचार कर सकते हो आप? नहीं देखिए, आपको क्या अच्छा लगता है करना? व्हाट इज सर योर पैशन? ऐसे तो मेरा बहुत लिस्ट है सर। हाँ नहीं, लेकिन फिर भी एक चीज होगी जो बहुत अच्छी कुछ लगती लिस्ट होगी, छुपे रहे अच्छे। हाँ, मतलब वही टॉप सर, प्रियोरिटी पे। वही सर, कैसे कैसे आप उसको कैरेक्टराइज करेंगे, मेरे को नहीं समझ में आता है। मैं अच्छा अच्छा, फ्रैंकली चलो बताऊं। मैं आपको कुछ पॉइंटर बताता हूँ, आप सोच के देखना। हाँ सर, वो आप अ, बताओ। जो चीज करने से आपको थकान महसूस ना हो, आप 12-14 घंटा काम करने के बाद भी अगर आपको कोई बोले कि ये करना है, जैसे मुझे 12 घंटा काम करने के बाद, पायलटेज करने के बाद भी अगर मुझ में वो ताकत है और मुझे लगता है कि मैं 4 घंटे और रियाज कर सकता हूँ, तो आप समझ रहे हो वो बहुत बड़ी हिम्मत की बात है ना। पर सर मैं ऐसा कुछ है चार्टरिंग ही में, नहीं, हाँ, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। कुछ ना, नहीं अभी है। अभी अभी नहीं, अभी नहीं, इसको टाइम लगे इसको। नहीं नहीं वो आप एक्चुअली समझ सर, रहे, एक ये मैं इसलिए एक आपसे एक पूछ आशीष रहा हूँ देखो, बिकॉज आप लिंक किए हुए हैं। हाँ नहीं मैं मैं वही इसलिए बता रहा हूँ आपसे आशीष, वही। एक हाँ थकान सर। ना होनी चाहिए आपको उस काम करने में, ओके चाहे आप कितने भी ओके थके हो। दूसरी ओके। बात, आपको उस चीज के सामने अगर कोई और भी लालच दिया जाए, चाहे वो पैसा हो, गाड़ी हो, कपड़े हो, खाना हो, वो आप उसको भी ठुकरा सको। आप समझ रहे हो? जैसे मैंने कहा कि यस मेरे को सर। सिंगिंग, आप शायद थोड़ा लेट आए, कि मैं जब गाना गाता हूँ ना, तो मुझे आप 2 दिन खाना भी नहीं दोगे ना तो मुझे चलेगा। मुझे आप एक झोपड़ी में भी रखोगे तो भी चलेगा। मुझे आप कैसे भी कपड़े पहना दोगे तो भी चलेगा।
लेकिन मैं गाना सुनूं और गाना गा सकूं ना, उससे बड़ी बात कुछ मुझे लगती नहीं। और मेरा जो अपना उद्देश्य अभी है फिलहाल कि ये है कि मैं अपनी आवाज से लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकूं। म्यूजिक हील भी करता है, म्यूजिक एंजाइटी कम करता है, म्यूजिक बहुत सारे डिजीजेस ठीक करता है। अगर आप देखोगे गूगल पे भी ना सर्च करके, तो म्यूजिक इज अ मेडिसिन इन इटसेल्फ। तो मैं चाहता हूं कि मैं अपनी आवाज से सारे सोल्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड टच करूं, लोगों को एक मुस्कुराहट दे सकूं, उनको बहुत अच्छा लगे, उनका एंजाइटी कम कर सकूं, डिप्रेशन कम कर सकूं। दैट इज द गोल ऑफ माई लाइफ एज ऑफ नाउ। और ये शो से सर डेफिनेटली मैं चाहता हूँ कि जितने हमारे सीफेयरर्स है ना, काफी अभी 2-3 दिन पहले, अभी 2 दिन से हम सेशंस कर रहे हैं ना, शिप पे डेथ्स हो रहे हैं, सुसाइड हो रहे हैं, डिप्रेशन हो रहा है, लोगों जो अभी डीएनएस कर रहे हैं बिना स्पॉन्सर के, वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, कंपनियां नहीं मिल रही है। तो उनके लिए आप, जैसे आप स्पिरिचुअलिटी में भी आप बातें करते हो, हाँ तो आप कुछ उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे उनको, हाँ डिप्रेशन हाँ से कैसे और म्यूजिक को कैसे यूज जी। करना है। देखिए, जो लोग सुन रहे होंगे, अगर उनमें से कोई है यहाँ, तो वो जरूर ये सोचेंगे कि हाँ, ये तो कैप्टन बन गया, अब इसको तो म्यूजिक में भी हो गया, अब ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तो मेरे जो भी दोस्त, जो भी जूनियर सुन रहे हैं, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं ऐसा कुछ नहीं बता रहा हूँ आपको। लेकिन मेरी बात मानिए, मैं बहुत सारा स्पिरिचुअल कोर्सेज, मेडिटेशन वगैरह भी करता हूँ। तो मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना चाहता हूँ कि ये बात सच है कि भगवान ना भूखा उठाता जरूर है, सुलाता नहीं है। और बॉम्बे इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। क्यों कैप्टन साहब, मानते हैं आप? यस हाँ, यस मानता हूँ, बिल्कुल है मानता ना? हूँ। अगर आदमी मेहनत करने के लिए तैयार है तो भूखा कोई नहीं सो यस सकता। यस, नंबर डेफिनेटली। नंबर टू नंबर टू देखिए, आदमी डिप्रेस किससे होता है, हमें ना कॉज जानना बहुत जरूरी है। हमारी एक्सपेक्टेशन जो है, उससे आदमी डिप्रेस होता है। यस देखिए, सिचुएशन बदलती है हमेशा। हमारे टाइम में था कि जॉब जॉब इतने थे, खाली ऑल ओवर इंडिया में 80 लोग राजेंद्रा से आते थे और 120 डीएमईटी से आते थे। बाकी कुछ था ही नहीं। ठीक है, और एक टीएस रहमान था। तो बहुत सारी जॉब्स थी। लेकिन अभी क्योंकि वक्त हमेशा बदलता है, चेंज इज ओनली कांस्टेंट, ये हम सब जानते हैं। तो हमें ना किसी चीज का कंपैरिजन करना, या हम, मुझे नहीं मिल रहा है। मुझे ना रोज एक कॉल आता है किसी कैडेट का, और मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन मैं उसको यही एडवाइस करता हूँ कि इस सिनेरियो में सबसे पहली बात तो यह है कि हमें कोशिश करते रहना चाहिए। राइट? कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई गलत डिसीजन हुआ होगा, या कहीं ना कहीं, जैसे मैंने आपको ये भी कहा ना कि बिलीव, आदमी ना बिलीव करना छोड़ देता है अपने ऊपर, कि नहीं यार, ये तो अब एजेंट ही करेगा, और ये तो वैसे ही होगा, और ये तो उसके बिना नहीं हो सकता, और ये इसके बिना नहीं हो सकता। क्यों आशीष, सही बात है यस ना? सर, जब आई एग्री। जब हम अपनी बाउंड्रीज बना लेते हैं दिमाग में कि ये ऐसे ही होगा, तो हमारी जो पूरी दुनिया है ना, वो हमारे दिमाग में एग्जिस्ट करती है, बाहर नहीं है कहीं। करेक्ट आशीष, सही बोल रहा हूँ? यस आप एक्सटर्नली कुछ नहीं है। अगर कोई सदगुरु जी को सुनता होगा, तो उन्होंने भी यही कहा है कि nobody hurts you, it is your expectation which hurts you। यस सर, ये बात आ, आपने सही, एक्सपेक्टेशंस। है ना आशीष? आज मैं आशीष से अगर ये उम्मीद करूं कि आशीष थोड़ी देर बाद मुझे फोन करके बोलेगा कि अरे सर आप क्या गाते हो, और आशीष ने मुझे नहीं बोला, तो एक्चुअली आशीष नहीं हर्ट कर रहा है। मेरी जो एक्सपेक्टेशन आशीष से है, वो हर्ट कर रही है कि आशीष से मैंने सोचा था ये बोलेगा, लेकिन बोला नहीं उसने। करेक्ट हम्म। आशीष? सो यस सर सर, आपकी जो दुनिया है वो यहाँ है, और आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो जब नहीं होता है, तो आप हर्ट होते हो। हर्ट यस सर, होते ये हो, आप फिर आप, बहुत सही बात बोले आपने, है ना? एक्सपेक्टेशन वाला ना। हाँ। और आप सी इट इज, देखो, एक मैं वन लाइनर बता रहा हूँ, इट इज द एक्सपेक्टेशन विच हर्ट्स। देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स विच इज हर्टिंग यू, you are assuming that the external force is hurting you, and the whole world, जो बार बार लोग कहते हैं स्पिरिचुअल टीचर्स, अगर कोई नहीं भी समझ पा रहा है तो मैं बता रहा हूँ, इज हेयर। मेरी दुनिया यहाँ है, मैं जैसे दुनिया को सोचता हूँ वैसा है। मैं आज सोच रहा हूँ कैप्टन विजय बहुत अच्छे हैं, आशीष बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा है। राइट? और मैं आज सोच लूँ अरे नहीं यार, कैप्टन विजय ने मेरा बेकार में टाइम वेस्ट कर दिया, आशीष तो पता नहीं कौन है, मुझे नहीं पता, तो मुझे वैसा लगेगा। तो हम्म। ये तो आपकी सोच है, और आपकी दुनिया यहाँ पर है, और आप जैसा सोचोगे और जैसा देखोगे वैसा आपको दिखेगा। तो एक्सपेक्टेशन हर्ट करती है। अब मैं आता हूँ कैप्टन विजय की बात पे। तो जो जूनियर्स या जो भी, जिनको भी तकलीफ हो रही है, आई कैन फुली अंडरस्टैंड कि क्या सिनेरियो चल रहा है मार्केट में।
लेकिन ऐसी कोई समस्या नहीं है। और इसीलिए आशीष, वो दूर मंजिल गाने में यही मैंने कहा है ना, कि ऐसी ना कोई समस्या है, ना ऐसी कोई रात है जिसकी सुबह नहीं होती है। नेचर हमको सिखाता है कि रात के बाद सुबह तो होनी ही है। आप कोशिश करना मत छोड़ो, आप अप्लाई करो, कंपनीज में जाओ, बार बार अप्लाई करो, नॉक करो। आज देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा अचीव मैंने कर लिया है कुछ, लेकिन मैंने जो भी किया है अपने दम पे, मेरा तो कोई दूर दूर तक रिश्तेदार भी नहीं म्यूजिक फील्ड में नहीं है ना। वो मैंने सिर्फ नॉक कर करके किया है। और सारे लोग मुझे जानते हैं इस बात के लिए कि ये अगर एक बार पीछे पड़ जाएगा तो छोड़ेगा नहीं। मैंने अपना सब, वो कहते हैं ना, ईगो और वो और ये सब घर में रख के जाता हूँ मैं बॉलीवुड में जब स्ट्रगल करता हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि निराश होने की जरूरत नहीं है। एक, अपनी मेहनत पे विश्वास करो, ट्राई करते रहो। और दूसरा, रास्ता तो खुलेगा ही जरूर, कहीं ना कहीं से निकलेगा रास्ता। लेकिन जिस दिन आप अपने से हार मान लेते हो कि नहीं, अब नहीं हो सकता, ये सारा मार्केट एजेंट के हाथ में है और ये होगा ही नहीं, तो बात ही खत्म हो गई। आपकी दुनिया तो वहीं एंड हो जाती है और आप वहीं हार गए। एम आई राइट कैप्टन साहब? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इसमें एक चीज बहुत हेल्प कर सकती है, आपका जो पैशन हो अपना, जैसे किसी का म्यूजिक है, किसी का सिंगिंग है, किसी का सिर्फ सुनना ही पैशन है, किसी का घूमना है, किसी का कुछ है, वो जरूर करें आप लोग। और अगर हो सके तो मेडिटेशन करें थोड़ी देर। मेडिटेशन कोई भक्ति वाला काम नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई धूप अगरबत्ती जलानी है और आपको बहुत सारा माला वाला चढ़ाना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी को ऐसा नोशन है तो मेडिटेशन इज जस्ट कीपिंग, ये जो है ना आपकी यहाँ जो चरखी चलती रहती है ना, नॉन स्टॉप आपके जो थॉट्स आते जाते रहते हैं कंटिन्यूअसली। अभी हम बात कंटिन्यूस। करें तभी मेरे दिमाग में थॉट्स आ रहा है, आप उसको काम डाउन करते हो और आप वो चीज सुनने की कोशिश करते हो। देर इज अ कनेक्टिविटी फ्रॉम योर, यहाँ एक क्राउन चक्र होता है, सबके शरीर में चक्र होते हैं, विच इज कनेक्टेड टू द हायर सोल या हायर बीइंग या गॉड जिसे कहते हैं। तो आप ये जो कम करोगे ना, तब आप ये सुनोगे कि वॉट ही इज ट्राइंग टू टेल यू, एंड ही ऑलवेज टेल्स समथिंग। ये मैं स्पिरिचुअल एस्पेक्ट बता रहा हूँ आपको। थोड़ा सा मेडिटेट करो, अपने आप को काम डाउन करो और थोड़ा सा ना, जैसे कहते हैं, आत्मचिंतन करिए, आपको रास्ते जरूर दिखेंगे। लेकिन जब तक आप इसको बहुत चलने दोगे ना, नॉन स्टॉप वो बोलता रहेगा कंटिन्यूअसली, ये नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वो ऐसा है, ये ऐसा है, मार्केट में ऐसा हो रहा, वो वैसा हो रहा, वो हो रहा है, ये हो रहा है, तब तक प्रॉब्लम होगी। और पैशन इसीलिए करना चाहिए फॉलो, क्योंकि ना वो आपको डी स्ट्रेस करता है, आपका एंग्जाइटी लेवल कम करता है, आपको हील करता है, आपको रिजुविनेट करता है, और उसमें आपको थकान नहीं होती है। तो आपके पास, अगर जैसे मैं अपनी बात अगर करूं, तो मेरे पास काम है और फिर मैं 4 घंटे का रियाज करता हूँ। अगर मैं अपने रूटीन छोटे थोड़े से मैं बताऊं तो, मैं सुबह उठ के थोड़ा वर्कआउट करता हूँ, 3 घंटे का रियाज करता हूँ, फिर मेडिटेशन करता हूँ, फिर मैं बॉलीवुड में नेटवर्किंग करता हूँ, फिर मैं गाने गाता हूँ और फिर मैं रिकॉर्डिंग्स करता हूँ। अब आप बताओ मेरे पास टाइम कहाँ है? तो और ये नेगेटिव सब थॉट को में तो मैं जरूर नहीं। और ये सब में पायलट एज का रोल जो है ना, वो अभी हाँ, काफी टफ होता है। लैडर्स क्लाइंब करना, रफ वेदर, बोट में रहना काफी टाइम, तो प्रैक्टिकली अभी हम जैसे मरीनर्स, हमें पता नहीं पायलट का रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट वो काफी टफ होता है। अभी ये सब करने के बाद थक थक हार के बंदा जाके रियाज कर रहा है, मतलब टेकिंग आउट टाइम टू डू रियाज, फॉलोइंग हिज पैशन। ये आज जब मैंने इनसे बात की तो आई वॉज वेरी मच टच्ड। और मैं चाहता था कि ये ना हमारे जो नए सी फेरर्स है, यंग सी फेरर्स है, जो परेशान है, डिप्रेस्ड है, इनको भी आपसे ना एक मोटिवेशन मिले। जी। मैं वही आशीष, डू यू एग्री मैं जो कह रहा हूँ आशीष? इज ए Yeah, sure, यंगस्टर। surely, totally, sir. देखो आशीष, 24 घंटे सबके पास हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास भी हैं, आपके पास भी है, कैप्टन विजय के पास भी और मेरे पास भी। आप उस 24 घंटे में क्या कर जाते हो? कोई कहीं पहुंचता है और कोई कहीं रहता है। ये सिर्फ आपकी वर्क प्लानिंग है, आपकी मेहनत है, और आप क्या करना चाहते हो। जैसे मैंने अपना रूटीन बताया, इसमें नेगेटिव थॉट की जगह कहाँ है आशीष, बताओ? मैं 12 साल 13 साल हो गए मुझे बॉलीवुड में स्ट्रगल करते हुए, लेकिन मुझे अभी जो मैं चाहता हूँ, बड़ा सा ब्रेक, सलमान खान की फिल्म में गाने वाला, अभी तक नहीं मिला। अब आप बताओ, मुझे तो डिप्रेस होकर कुछ और ही कर लेना चाहिए था। मेरे पास तो, मैंने करेक्ट। सेलिंग भी छोड़ दी, पैसे भी नहीं है मेरे पास, गाड़ी भी नहीं है, वाइफ भी बोलती है कि तुम क्या करते हो। आधे लोग बोलते हैं पागल है, पता नहीं क्या कर रहा है। बहुत सारे लोग मेरी वाइफ को बोलते तो अपने हस्बैंड को समझाओ। मेरे माँ बाप भी मेरी वाइफ को बोलते कि उसको समझाओ यार, वो क्या कर रहा है। तो आशीष, इस हिसाब से बाकी जो लोग सुन रहे हैं, मुझे तो सुसाइड कर लेना चाहिए था अभी तक, राइट? एम Right, आई sir. राइट और नॉट आशीष? Yes, करेक्ट। yes. लेकिन
आप वही मैंने कहा ना, आपकी दुनिया यहाँ पर है। आप क्या सोचते हो, आप कैसा फील करते हो, कैसा महसूस करते हो, वो आपके ऊपर है। आप कैसा सोचते हो। मुझे पता है कि मुझे क्या सुकून मिलता है। मुझे पता है कि किसी के पास करोड़ों रुपए भी बैंक में हो, या फिर आप मेरे अकाउंट में करोड़ रुपए रख दो और मुझे बोलो कि सर आप सिंगिंग छोड़ के आप यहाँ पर रहो, मैं आपको 1 करोड़ रुपए देता हूँ, तो मैंने तो ठुकराया है। वो तो मैं आपको सामने एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, शायद मैं नहीं मानूंगा। तो करेक्ट। ये कैप्टन विजय, ये ना बेसिकली इंडिविजुअल के ऊपर है। क्योंकि वो जो खाली दिमाग जब आप रखोगे ना, तो जैसे कहते हैं ना, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, वही होता डेविल्स है। वर्कशॉप। आपके सारे नेगेटिव थॉट्स घुसना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज वर्ल्ड आउटसाइड इज नेगेटिव। इट इज ऑलवेज टेलिंग यू ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ये होता है, वैसा होता है, वैसा होता है। आप अपने दिमाग, आप बिजी रहो अपने वर्क में। आप अपना शेड्यूल बनाओ, आप अपना डेली शेड्यूल बनाओ, डेली रूटीन बनाओ, पैशन फॉलो करो, वर्कआउट करो, अपनी मेहनत करो, कोशिश करो, ऊपर वाले पे विश्वास रखो। सबसे बड़ी अदालत उसकी अदालत है। ये मैं किताबी बात नहीं कह रहा, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो इसमें चिंता की बात नहीं है, और कोई भी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर, हमने जैसे कि ना काफी जो बॉलीवुड एक्टर्स है, काफी जो सक्सेसफुल एक्टर्स होंगे, सिंगर्स होंगे, तो काफी है जो अपनी लाइफ स्टोरी अपनी बताते हैं, कभी ना वीडियोस पे, अभी ने कभी यूट्यूब पे देखा या टीवी चैनल्स हाँ पे, जी। सब अपनी सक्सेस स्टोरी बताते हैं। लेकिन ये हम ना कभी उनके बारे में बात नहीं करते जो जिनको सक्सेस नहीं मिलता और वो वापस उल्टे पैर वापस अपने अपने गाँव चले आते हैं। तो उसके बारे में कुछ बताएंगे सर? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है कैप्टन विजय ने। आशीष, आप समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हैं। यस देखिए, सर। हम ना एक अरिजीत सिंह को देख रहे हैं, एक अमिताभ बच्चन को देख रहे हैं, और इतनी सारी स्टोरीज लोगों ने बताई हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही है या गलत है, लेकिन मैं वड़ा पाव खा के, मैं बस स्टॉप पे सो के, मेरे को सक्सेस मिली। मैं बस में कंडक्टर था, मुझे सक्सेस मिली। मैं ये कर रहा था, लेकिन वो कितने करोड़ों में एक है, राइट। लेकिन जो लोग लौटते हैं, जमीन जायदाद बेच करके आते हैं, मैं बोलना नहीं चाहता ऑन रिकॉर्ड, लेकिन मैं तो दिन रात उन्हीं लोगों के बीच में घूमता हूं, तो मुझे पता है कि कितनी लड़कियां माधुरी दीक्षित बनने, कटरीना कैफ बनने अपना सब कुछ छोड़ के घर से आती हैं, और वो घर से वापस नहीं जा पाती ये सोच के यहाँ से, कि अब मैं बोल के आई हूं कि मैं ये बनूंगी, अब मैं वापस कैसे जाऊं। नंबर वन। नंबर टू, बहुत सारे लड़के जिद करके, लड़ाई करके घर से यहाँ आते हैं। मैं उन सबके लिए एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि जितना बॉलीवुड ग्लैमरस दिखता है उतना है नहीं। ऐसा नहीं है जितना आपको फिल्मों में दिखता है, जो स्टोरीज बताई जाती हैं कि वो बस स्टॉप पे सोया और ऐसा हुआ और वैसा हुआ और कल वो बन गया। लेकिन वो, जैसे कैप्टन विजय ने एग्जैक्टली वो बात कही कि जिसका नहीं हुआ उसका क्या हुआ, उसको किसी ने बताया आज तक। जैसे आपने फिल्म छिछोरे में देखी होगी, सुशांत सिंह राजपूत ने यही बोला है कि हम एक आईआईटी में जो बंदा चला जाता है, उतने लाखों में से उसकी बात तो करते हैं कि उसने ऐसी मेहनत की थी, लेकिन वो जितने जिनका आईआईटी में नहीं होता है, जो भी एग्जाम्स में नहीं होता है, उसके बारे में कोई नहीं बताता। तो मेरा सिंसियर एडवाइस ये है, क्योंकि मेरे को 12-13 साल हो गए हैं इसमें यहाँ स्ट्रगल करते हुए, कि देखिए, सबसे पहले तो आप ये मान के चलिए कि स्टोरीज पे मत जाइए। ये अब वो आपको कभी नहीं पता चलेगा कि वो कितनी हकीकत है और कितनी हकीकत नहीं है, नंबर वन। क्योंकि यहाँ सब टीआरपी का गेम ज्यादा होता है, मसाला ज्यादा बिकता है, सीधी सच्ची कहानी ज्यादा बिकती नहीं है, ये हम सब जानते हैं, राइट। तो आपको कभी, हम जैसे कॉमन आदमी को कभी ये समझ में नहीं आएगा कि सच्चाई क्या थी, नंबर वन। नंबर टू, अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए, अपने टैलेंट पे विश्वास रखिए, और कोई भी ऐसा ड्रास्टिक स्टेप मत उठाइए कि जमीन जायदाद बेच दी, घर वालों से लड़ाई कर ली, घर छोड़ के भागा, ये सोच के कि किसी सेलिब्रिटी ने बोल दिया कि मैं तो बस घर छोड़ के आया, लड़ाई करके आया, उसके बाद मैंने यहाँ 2-4 साल स्ट्रगल किया, उसके बाद मेरे को काम मिल गया। आपको, जो भी सुन रहे हैं और जो भी एस्पायरिंग एस्पायरिंग बॉलीवुड में सोच रहे हैं जाने की बात, आपको ये नहीं पता होगा कि वो लड़कियां और वो लड़के किस किस दौर से गुजरते हैं। जो लोग एक मंजिल तक पहुंचते हैं, मैं उससे ज्यादा बोलना नहीं चाहता, बिकॉज ऑन रिकॉर्ड वो थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा, लेकिन बहुत सारी चीजों से गुजरना पड़ता है, और वो शायद आपको कभी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए अपना, जैसे मेरा अपना बेटा है, वो अभी 10th में है, वो रैप भी करता है और वो म्यूजिक भी बनाता है, मतलब म्यूजिक डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन मैंने उसको ये बोला है कि बेटा ठीक है, तू मेरा एक्सपीरियंस से तो फायदा उठा सकता है, लेकिन ना पहले एक फाइनेंशियल स्टैंडिंग होनी चाहिए तेरी। तेरे पास एक ऐसा जॉब होना चाहिए जिससे कि तू ना शाम को घर आए तो तेरे पास रोटी तो होनी चाहिए, राइट।
लेकिन ऐसा कभी ड्रास्टिक स्टेप कभी नहीं होना चाहिए कि नहीं बस हो गया, ये तो पढ़ाई थी, अब मैं एकदम सीधा कल अमिताभ बच्चन बनने जा रहा हूँ और मैं यहाँ कर रहा हूँ। यहाँ कोई सर्टेनिटी नहीं है। लेकिन आज किसी के पास काम है और आज किसी के पास काम नहीं है। बड़े बड़े स्टार्स, बड़े बड़े सिंगर्स, बड़े बड़े एक्टर्स आप देख लो, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आज उनके पास काम है, कल नहीं है। तो फिर क्या करोगे आप? तो इसीलिए मेरी सलाह तो यही है कि एक फाइनेंशियल स्टैंडिंग आपके पास, एक सोर्स ऑफ इनकम जरूर होना चाहिए। आप अपने आप को इस काबिल बनाओ कि आप एक जगह से कहीं आपको फाइनेंशियल इनकम जरूर आए, आपकी स्टैंडिंग हो, उसके बाद आप मजबूती से लड़ो। आप 24 घंटे होते हैं दिन में, आप करना चाहते हो तो क्यों नहीं होगा? जैसे मैंने कहा, नरेंद्र मोदी के पास भी 24 घंटे ही होते हैं, पूरा देश संभालता है। हम अपना घर संभालने में ही रोने लगते हैं कि अरे यार अभी इतना टेंशन हो गया, 2 बच्चे हैं, एक बीवी है, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। क्यों कैप्टन विजय, सही बात है। बिल्कुल सर। Yes, yes. तो एक्सक्यूजेस का तो कोई अंत नहीं है। आप अगर करना चाहो तो 24 घंटे में भी बहुत कुछ हो सकता है, और बड़े बड़े लोगों ने बहुत कुछ किया है। हाँ जी सर। सर, मैं एक किसी ने कमेंट किया था तो मैंने उसको पिन करके रखा हुआ था। उसने, जैसे आपकी इतनी सुरीली आवाज है तो आपके हेल्थ मॉडल्स आपके हेल्थ मॉडल्स कैसे होंगे? ये अच्छा सवाल पूछा कैप्टन विजय, बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं पायलटेज करने भी जाता हूँ ना, तो बहुत सारे कैप्टन ना मुझे वीएचएफ पे, जब मैं उनको इंस्ट्रक्शन देता हूँ ना शिप को कि कैप्टन प्लीज कम टू पायलट स्टेशन विद दिस स्पीड एंड दिस हेडिंग एंड दिस कोर्स, तो वो लोग पहले ही समझ जाते हैं कौन है। तो मैं कई बार मैंने उनको पूछा कि यार ये क्या बात है, तो बोलते हैं आपकी आवाज बहुत सुरीली है, हमको अलग से समझ में आता है कि ये वाला पायलट ही होगा। तो तो वैसे होता है कि लोगों को शायद वैसे आदत है। ठीक है सर, अभी ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया। सर, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, हमारे सेशन से और भी हम सेशंस करेंगे। बेसिकली आपने इतना स्ट्रगल किया, आपने पूरे अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करे, फिर भी आपने अपने म्यूजिक का पैशन को नहीं छोड़ा। आपको लोगों ने कितना रिजेक्ट किया, रिजेक्शन मिला, फाइनेंशियल इश्यूज, बट फिर भी आपका जो लव फॉर द म्यूजिक था। तो ये भी जब मैं यू नो कुछ सी फेयर्स, अभी कुछ 10th 12th मुझे मैसेज करते हैं ना, मुझे मर्चेंट नेवी ज्वाइन करता हूँ, और मैं फिर उनका डीपी में कभी ऐसा चेक कर लेता हूँ। तो कोई हाँ, स्पोर्ट्स में एकदम अच्छा होता है, अभी कोई एक था मार्शल आर्ट्स में अच्छा है, तो मैं उसको बोलता हूँ कि मर्चेंट नेवी ज्वाइन करो, नो नो प्रॉब्लम, बट अपना जो ये जो पैशन है ना, मार्शल आर्ट्स, हाँ, कोई बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, कोई रैपिंग कर रहा है, कोई सिंगिंग, अभी कमल सिंगिंग कर रहा है, अभी आशीष अपना रैपर है, अपना फ्यूचर बादशाह है। तो इसको नहीं छोड़ो कभी। इसको क्यों, क्या होता है ना, मर्चेंट नेवी में एक बार थर्ड मेट, सेकंड मेट, चीफ मेट या थर्ड इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर, ये रैंक में ना, और डिपेंडिंग ऑन द शिप टाइप में इतने बंदा बिजी हो जाता है ना, जो उसका जो हॉबी थी, पैशन था, वो ना धीरे धीरे डाउनग्रेड हो जाती है। तो उसको नहीं छोड़ना है, उसको फॉलो करना है, एंड उसको ट्राई टू मेक इट एज ए और प्राइमरी, ताकि ना लोग आपको, जैसे कि मैं कमल को बोला, मैं उसको चाहता हूँ कि एक दिन उसको लोग बोले कि वो एक वर्ल्ड क्लास सिंगर है या राइटर है, जो ऑल्सो एक मास्टर मरीनर है। ऐसा नहीं कि जो मास्टर मरीनर है वो एक हु इज ऑल्सो अ सिंगर राइटर। तो ये मेरा एक राइट। अपनी तरफ से मानना है। और सर, दूसरा एक मैं बोलना चाहता हूँ, सिंगर्स है आजकल अभी ऑटो ट्यून पे पूरा चलता है, मोस्ट ऑफ द सिंगर्स ऑटो ट्यून पे चलता है। आपकी सुरीली आवाज है लाइव, बिना किसी के, मैंने हैव रिक्वेस्टेड कि आप कुछ आपके फेवरेट सॉन्ग्स आप अच्छा, अगर गा दे तो। हमारे पास कितना टाइम है, मैं उस हिसाब से बता गाता हूँ नहीं नहीं, आपको। ऐसा टाइम की बात नहीं है सर। ठीक है। जस्ट आपकी ब्यूटीफुल आवाज में कोई, आपको कोई भी फेवरेट गाना आप बता दीजिए, सुना दीजिए। ठीक है, मैं ना कैप्टन साहब थोड़ा थोड़ा मुखड़ा सुनाता हूँ 2-3 गानों का, तो आपको थोड़ा फ्लेवर समझ में आएगा कि ना कैसा चलता है। बिल्कुल सर। तो पहले आशीष का फेवरेट गाना सुनाता हूँ मैं, हाँ? दूर मंजिल है तेरी, तू अकेला है माना, दूर मंजिल है तेरी, तू अकेला है माना, फिर भी मगर मुश्किलों से राही न तू हार जाना, दूर मंजिल है तेरी,
तू अकेला है माना। दूसरा सुनाता हूं मैं, एक लव आजकल का, थोड़ा सा ओके, यंगस्टर्स ज्यादा होंगे तो शायद थोड़ा सा मैं उनके लिए भी सुनाता हूँ। हम भी यंगस्टर है सर। हम लोग सब यंगस्टर ही हैं। शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको, कहे बिना समझ लो तुम शायद। शायद मेरे ख्याल में तुम एक दिन मिलो मुझे कहीं पे गुम शायद। जो तुम न हो रहेंगे हम नहीं, जो तुम न हो रहेंगे हम नहीं। न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं। जो तुम न हो तो हम भी हम नहीं। जो तुम न हो तो हम भी हम नहीं। न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं। मेरा एक बढ़िया सर। टी सीरीज का एक सॉफ्ट रोमांटिक है, अगर कमल यहाँ होगा तो उसको वो सुन रहा होगा। कोई अतरंगा सा रिश्ता तुझसे है जुड़ने लगा, मेरे जीवन का हर रास्ता तेरी ओर मुड़ने लगा। कोई अतरंगा सा रिश्ता तुझसे है जुड़ने लगा, मेरे जीवन का हर रास्ता तेरी ओर मुड़ने लगा। दिल की जमीन पे भीड़ खुशियों की लगने लगी, सांसों में रात दिन सुरीली धुन बजने लगी। बेबी आई लव यू, बेबी ते amo, बेबी आई लव यू, बेबी ते amo। कोई अतरंगा सा रिश्ता तुझसे है जुड़ने लगा, मेरे जीवन का हर रास्ता तेरी ओर मुड़ने लगा। ये मेरा टी सीरीज में एक सॉफ्ट रोमांटिक था। एक मैं डांस नंबर सुनाता हूँ, और जो कलंक फिल्म का है, तो थोड़ा सा सुनाता हूँ मैं आपको। मैं अपने आप को कंट्रोल करूंगा। अच्छा अच्छा। मेरे होठों से धुआंधार निकलती है जो बोली, जैसे जैसे बंदूक की गोली। मेरे तेवर में है तहजीब की रंगीन रंगोली, जैसे जैसे हो ईद में होली। मेरे जीवन की दशा थोड़ा रस्तों का नशा, थोड़ी मंजिल की प्यास है। बाकी सब फर्स्ट क्लास है, हाँ कसम से बाकी सब फर्स्ट क्लास है। परफेक्ट सर, परफेक्ट। मजा आ गया। और मैं शिप पे जो गाता था वो थोड़ा सा सुना देता हूँ, सर मुकेश एक, जी का गाना है। ओके हाँ, मुकेश जी, हाँ मैं मोहम्मद रफी रिक्वेस्ट कर रहा था। अच्छा, मुकेश जी का गाना है। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। रफी साहब को कौन सा सुनना है?
कोई भी सर, अभी तो उनके काफी सारे सॉन्ग्स हैं, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है। बैजू बावरा का तो मेरा फेवरेट है, बट वो काफी सैड सॉन्ग हो जाए। अच्छा, मैं थोड़ा 2-3 लाइन सुनाता हूँ मुझे जो याद आ रहा है। उनकी एक गजल है बहुत अच्छी सी है। कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करार आता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। ये रफी साहब ने ही गाया, गजल है। और सर अभी फरमाइश देख लेते हैं किसी की, मजा आ गया सर। आशीष आशीष काफी बता लोग रहे हो? आशीष की रैपिंग करना चाह रहे हैं, बट आशीष के साथ हम तो छोटे हैं, आशीष तो बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है। कभी नेक्स्ट हाँ, टाइम अभी लाइव में आओगे तो हम बल्क पक्का रैपिड रैपर करेंगे। और ये अपना कमल भाई है अभी अवेलेबल, वो पूछ रहे हैं अच्छा। कोरोना सिचुएशन सॉन्ग सर। सर हाँ, आपका ये जूम हो गया। कोरोना कोरोना आई एम जस्ट सिचुएशन गेटिंग। सॉन्ग कमल ने ही लिखा था, मेरे यूट्यूब चैनल पे है। और मैंने उसको एसबीएम पे था मैं शिप पे, और मैंने उसको ऐसे ही थोड़ी सी मतलब कमल ने भी थोड़ा सा लय बताया था, मैंने भी अपना जो भी मेरे को समझ में आया मैंने गाया था। यूट्यूब चैनल पे है, मैंने मुझे अब याद नहीं है पूरा का पूरा, लेकिन कोई देखना चाहे मेरा चैनल तो मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, फेसबुक पे हूँ, फेसबुक पेज है, यूट्यूब चैनल है कैप्टन प्रमोद के नाम से ही, तो आप लोग ढूंढ सकते हैं। तो मेरे को याद नहीं आ रहा कमल, सॉरी। हाँ अ, पूरी लिरिक्स याद नहीं है अभी मुझे बेसिकली। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कमल को भी हमने इनवाइट किया था लाइव, बट उसको सीओसी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट उसके लाइव पे आने के लिए। अच्छा, तो तो ओके। वो भी जल्द वो भी क्या जल्दी सर, आएगा क्या एक बार। मिनिमम रिक्वायरमेंट? जी जी। वो उसको टाइम चाहिए थोड़ा। अरे आओ, इसमें क्या टाइम है। और ठीक है आशीष सर। ठीक था? कैसा लगा आशीष को? हाँ आशीष। सर बिग फैन है हम आपके। अभी आपके बारे में पता लगा है, अब धीरे धीरे आपका सर खाएंगे सर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और सर हम तो हैं, वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमको भी कोई हाँ, गाइडेंस चाहिए होगा आपसे तो हम जरूर लेंगे। अभी तो आपसे मोटिवेट हो रहे हैं कि नहीं नहीं, बताओ, आप बिल्कुल। अलग लेवल पे गए हो, इतना डेडिकेशन, इतना। नहीं नहीं वही सर, आशीष, हम ऐसा मैं नहीं भी होता। सर मैं भी अपनी लाइफ में वही ब्लिस वाला सीन ढूंढता रहता हूँ। हाँ और हाँ बहुत कुछ ट्राई किया है, तो बहुत कुछ करता रहता हूँ। बट यही है, ये वो जो मैंने बोला, ऑन बोर्ड में हॉबी होना बहुत जरूरी है। मैंने सर लास्ट हाँ। शिफ्ट में अभी मैंने देखा, फर्स्ट 2 मंथ्स में अपना हॉबी कंटिन्यू कर रहा था, मतलब वीडियो कंटेंट बना रहा था, एडिट कर रहा था, हम्म, बहुत वर्क आवर भी था, रेस्ट आवर भी था, सब करके मैच करके मैं कर रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही थी। फिर 2 महीने में नहीं कर पाया ड्यू टू सम रिस्ट्रिक्शंस, और मैंने देखा मेरा जो एफिशिएंसी है वर्क में वो गिर गया। गिर गया हल्का सा। तो उसके बाद हम्म। मुझे दिमाग में आया, नहीं भाई तुझे करना है, और तू धीरे धीरे हाँ करते जा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आशीष, हम लोग के सिंगर्स का अगर आपको पता हो ना, तो जितने बड़े बड़े सिंगर्स भी हैं ना, अगर रियाज छोड़ देना तो वो डिटोरिएट होने लगता है। जैसे यस। यहाँ जो है बेसिकली ये मसल है, वोकल कॉर्ड्स। तो जैसे बॉडी बिल्डर नहीं रोज जिम जाके अपनी बॉडी बनाता है, अगर वो यस। 1 महीना छोड़ दे तो मसल डिटोरिएट करनी पड़ती है। एग्जैक्टली वोकल कॉर्ड्स में मसल है, अगर आप रियाज करना छोड़ दो वो डिटोरिएट करनी शुरू हो जाती है। तो जैसे मैंने इसलिए कहा था, कैप्टन विजय साहब को भी कहा था कि कोई भी चीज में ना त्याग और तपस्या बहुत ज्यादा है। यस सर। मतलब शॉर्टकट नहीं है ना आशीष? नो उसके बिना शॉर्टकट्स। नहीं। हम्म, बहुत अच्छा लगा ऑलराइट सर। सर। बिल्कुल सर। हम बहुत आभारी हैं, वी आर वेरी मच अरे थैंकफुल सर आने के अरे लिए। नहीं, मैं आपने अपना वैल्यूबल टाइम दिया, आई डोंट नो हाउ कैसा आपने मैनेज किया और शॉर्ट नोटिस पे। और आशीष, थैंक यू ऑल्सो सो मच फॉर नहीं, थैंक यू कैप्टन साहब, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। अपने भाइयों के बीच में आके गाना बहुत अच्छा लगता है। आफ्टर ऑल आई बिलोंग टू यू, उसी जगह पे वो बिलोंग करता हूँ ना। एंड यू ऑल आर यस। माई स्ट्रेंथ, मोटिवेशन और हम स्ट्रेंथ भी हो। बड़े यस। गर्व हम से बोलता हूँ, मैं एक मरीनर हूँ, तो हम भी वो मुझे सर। बड़ा प्राइड होता है ना। सो बिल्कुल थैंक्स टू सर, यू एंड बिल्कुल। थैंक्स टू आशीष।
हाँ थैंक यू सो मच। एंड आप भी सर, हम मर्चेंट नेवी वालों के लिए एक इंस्पिरेशन है, एक रोल मॉडल है। और कभी भी वेन एवर वी फील लो इन लाइफ, हमें अपना पैशन छूट रहा है हमसे, अभी तो ये दूसरे लोगों की बात करो, मैं मुझे अभी मेरे को खुद पता नहीं मेरा पैशन क्या है, बट अगर ऐसा ऐसा है तो डेफिनेटली आप एक रोल मॉडल है टू वर्क हार्ड, वर्क फॉर इट। स्ट्रगल लाइफ में होंगे, बट विनर्स, लूजर्स नेवर क्विट, जो आपने बोला था। यस एंड काफी लोग ने अप्रिशिएट किया। प्रियरिस, शी सेइंग नाइस वॉइस। मेरे को सर कमेंट ही और नहीं दिख रहे हैं, वही मैं ढूंढ रहा हूँ तब से। कमेंट सब यार एज यूजुअल अपने आप में गॉसिपिंग, कुछ किसी को जॉब चाहिए, वो चाहिए, ये सब चलता रहता है हमेशा। नहीं इसलिए सर मैं आया ना, मैं संभालता इन लोगों को, अच्छे से संभालता हूँ। नो डाउट, नो डाउट, आई नो। मेरा चलो ठीक है, अपने अपने बाद में करेंगे। ठीक है सर। ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन सर, लास्ट क्वेश्चन। आपके पीछे किसी ने अच्छे ऑब्जर्वेशन किया था, उदित नारायण जी की फोटो दिख रही है। हाँ, ये एक्चुअली 3 फोटो है, कैमरा में नहीं दिख रही होगी। उदित जी के साथ एक फिल्म थी क्या जमाना, जिसमें मैंने गाया था सोलो सॉन्ग। और उदित जी ने भी एक गाना गाया है उसमें। तो वो रिकॉर्डिंग के दौरान मैंने प्रोड्यूसर को बोला था कि मेरे को जरूर बुलाना, क्योंकि वो लेजेंड है, मैं उनसे कुछ सीखूंगा जरूर। तो उस समय की है। प्लस एक मैं दिखाता हूँ, फिर एक कुमार शानू जी के साथ भी है, और एक आप देखोगे अनुराधा पौडवाल जी के साथ भी है। हम्म। सबसे ऊपर अनुराधा पौडवाल जी के साथ है, वो उनके साथ डुएट गाया था मैंने। फिर कुमार शानू जी के साथ है, उनके साथ एक गाया था। उदित जी के साथ गाया था। ये बात हो गई है करीब 2013 12-13 की है, 6-7 साल हो गए। इन लोगों से मिलता रहता हूँ, वो लोग भी बड़े बहुत प्यार करते हैं, बहुत सारा रिस्पेक्ट भी देते हैं। तो वो उनके टाइम का वो फोटोग्राफ्स है, जो उनके साथ किया था काम। ठीक है सर, ठीक है। एक लास्ट सर, लास्ट, ये कमल मर्चेंट 2 बार बोल चुका है, जाने वालों जरा मुड़ के देखो इधर। अगर आपको लिरिक्स याद है तो सर, एक उस सॉन्ग के साथ वी विल एंड आवर ब्यूटीफुल सेशन सर। मेरे को नहीं वो याद नहीं, सॉरी। नहीं याद है? ओके कमल, नेक्स्ट टाइम साथ में नेक्स्ट जब टाइम एक काम कर सकते मिलके। हैं, कभी मुझे एक काम कर सकते हैं, अगर नेक्स्ट टाइम आप अगर बुलाओगे मुझे, तो आप मेरे को एक फरमाइशी लिस्ट दे देना, ओके है ना? ओके, हाँ वो मैंने सोचा नहीं, बट हाँ डेफिनेटली आज तो अभी आपकी लाइफ जर्नी हाँ हमने डिस्कस कर ली, तो नेक्स्ट टाइम बिल्कुल सर, जी। बिल्कुल मैं भी वो अपने हाँ, दैट विल बी ए, लाइक ना अ गुड थिंग। कुछ लोगों के फरमाइशी सॉन्ग हम ले लेंगे, तो क्या होता है ना, एट रैंडम लिरिक्स और उसका स्केल वेल देखना पड़ता है ना गाने का, कि क्या स्केल है और किस स्केल पे गाना है। तो वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा मेरे लिए भी, और मैं सारी फरमाइशें पूरी कर दूंगा। सर एक मेरी तरफ से लास्ट जो मुझे अभी याद आ रहा है, सिंस वी ऑल आर कंफ्यूज्ड इन लाइफ, जिंदगी कैसी है पहली सर, अगर आपको लिरिक्स याद है तो सर। हम्म, जिंदगी कैसी है पहली, कभी तो हंसा है कभी तो रुला है। नहीं वो भी पूरी याद नहीं होगी 2 लाइन के अलावा। बढ़िया सर। अपना हमारा लाइफ भी ऐसे ही है, कभी हंसाएगी कभी रुलाएगी। सो विद दिस ब्यूटीफुल नोट, आई वुड लाइक टू थैंक यू अगेन सर फॉर कमिंग लाइफ, एंड थैंक यू होपफुली सर आगे और भी मिलेंगे, और भी अपने सेशंस होंगे सर फ्यूचर में। जी जी जी, थैंक यू आपने मुझे, थैंक यू। थैंक यू सर, एंड थैंक यू टू ऑल आवर व्यूअर्स फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम।